अब हम बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं. Now today we have to discuss about noble gases. Noble gases क्या हैं, कौन है, who are they? Noble gases are members of group 0, या फिर से like you can also call it group 8, right? The other names that are commonly given to them, yes, for example, you can call them with many names. Like एक तो तुमने like you called it noble gas, you can call it inert gases. Inert something which is non-reactive. Inert means non-reactive gases. So like you must have seen them at the corner somewhere over here. This includes helium. Let me write the symbols. Includes helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Right. Although they are in group 8, like you already have noticed, something that is in group 7 should have 7 electron. Something that is in group 6 should have 6 electron in its valence. Something that is in group 5 should have 5 electron in its valence. Something that is in group 1 should have 1 electron in its valence. You have already studied this thing. Right. But here, the first member and rest of the 5. This has 2 electrons in its valence. While rest of them have 8 electrons in the valence shells. 8 electron in the valence shell and 2 electron. Why this discrimination? Usually we have same number of electron in entire group member, but why not this? As this is including helium. Helium is the smallest, one of the smallest noble gas, which has just one shell having 2 protons and 2 electrons and 2 neutrons even. तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से नियॉन और रेडॉन कौन सी गैस है? ये भी नोबल गैसेस है बेटा. नियॉन तो अभी बात करेंगे जब यूजेस पे पहुंचेंगे इनके. अच्छा, इंक्लूजन तो मैंने देख ली कितने सारे एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स मुझे नजर आए. सो दे मे नॉट बी यूजिंग. एक मिनट. नाउ ठीक है. हैविंग complete valence shell should be an appropriate phrase for representing the electronic structure. Having complete valence shell. Rather than calling having 2 or having 8, better call them they have complete valence shell. Outermost shell is completed. इसके पास 2, बाकी सबके पास 8, 8, 8, 8. This is a sign of completion. Now, because of this complete shell, because of the complete valence shell, they don't need to react. They can't react if they are
having valence shell completed, they don't need to react. Actually, रिएक्शन किस लिए होता है? रिएक्शन वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए होता है या स्टेबल करने के लिए होता है. तो तुम इनको कंप्लीट या स्टेबल वैलेंस शेल कह दो. और समथिंग दैट इज ऑलरेडी स्टेबल, इट वुड नॉट बी नीडिंग टू गेट स्टेबल फर्दर. उसको मजीद स्टेबल होने की जरूरत नहीं होगी. ओके. नाउ एक मिनट, ये जिसने भी सवाल पूछा लास्ट वाला about the reaction, Roman, you just need to wait for a few minutes, you will get your answer. Now, the melting and boiling points are increasing. इनके melting boiling point increase होंगे down the group. यानी helium must have lowest and radon must have highest melting and boiling point. And why is that so? Down the group, atomic sizes are increasing. Atomic sizes are increasing down the group. Always remember, intermolecular forces, those forces that are responsible for state of matter. Intermolecular forces, इसकी definition भी लिख लेता हूँ. Those forces of attraction that are responsible for the state of some substance, their melting and boiling points ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबल है. ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की. Down the group, these force of attraction are increasing. Atomic size is increasing, so intermolecular forces are increasing as well. ठीक है. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेंगे तो तुम देख सकते हो स्टेट भी डेंस हो जाएगा और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे. ओके. ओके, इसका मतलब है हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट -207, नियॉन का -196, आर्गॉन का -104, क्रिप्टन का -88, जेनॉन का -45, रेडॉन का -12. सबके तो यूं अगर नेगेटिव में नंबर छोटा होता है तो इसका मतलब पॉजिटिविटी में वो नंबर बड़ा हो रहा है. So this is the smallest value and this is the biggest value that you need to remember. Okay.
नाउ तो ये तो मेरे पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आया। आगे अगर मैं बात को लेके चलूँ, मैं ये कह सकता हूँ they can't react with any chemical, but there are few man-made compounds of noble gases. Example, XeF4, example XeCl4। ठीक, अब मैं ज़रा इसके बारे में बताता हूँ। XE का अगर स्ट्रक्चर एग्जामिनर तुमसे इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर पेपर में पूछ चुका है कई दफ़ा। मैं जानता हूं कि जेनन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ ये सिचुएशन। सर आप सीधा एक साथ बना देते, बना में बहुत कुछ सकता था। जी बेटा। now now this is the structure of xenon। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो सर ये F4 के साथ कंपाउंड कैसे बना सकता है कि इसके पास तो कोई स्पेस ऑफ बॉन्डिंग ही नहीं है। हमने अब तक यही सीखा था ना कि बॉन्डिंग उसी जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो। तो जेनन के पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो ये जेनन क्या करेगा? अब जरा सोचिए, हम जेनन को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ 2 फ्री molecules of fluorine, it makes XeF4 and it is heated to cause this reaction up to very high temperature। और ये टेम्परेचर क्यों दिया जा रहा है? कोई से भी दो ये जो पेयर्स थे इनको हम क्या कहते थे? लोन पेयर कहते थे। हम इसे क्या कहते थे बेटा? लोन पेयर कहते थे। इन लोन पेयर्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं हीट कर रहा हूं, तो हीट करने से ये लोन पेयर टूट जाएगा, ये लोन पेयर टूट जाएगा। टूटने से मतलब क्या है? दे गेट अनपेयर्ड। कैसे हो जाएंगे? अनपेयर्ड। पेयर टोटल कितने थे? 4। अब 2 पेयर्स ऑलरेडी रह गए और 2 पेयर स्प्लिट हो गए। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये एक पेयर था, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर। ये भी पेयर था लेकिन अब नहीं बचा, अब ये पेयर नहीं कहला रहा। ओके, दोबारा से सुनो गौर से। If I say this is a noble gas should have how many electron? 8। और 8 इलेक्ट्रॉन की बेसिस के ऊपर इसमें बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात दुरुस्त है? If something has a complete outermost shell, does it need to require anything to bond? No, ये तो नहीं बॉन्डिंग चाह सकता, बॉन्डिंग कर ही नहीं सकता। तो हम क्या करें सर? हमें एग्जामिनर कह रहा है कि अगर आप उसको इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये कंपाउंड बनाएगा। एग्जामिनर कहते हैं ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ दिस कंपाउंड यूजिंग दिस एज अ बेसिक स्ट्रक्चर। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे इसमें बॉन्डिंग करानी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू स्प्लिट any two pairs। why? Because how many fluorine I want to add in it? 4। तो इसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4। अब वो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे इसे देखते हैं। एक मिनट रुको, किसी ने कुछ शेयर किया हमारे साथ। ओके, आपने नोबल गैस के मोल्टिंग बेटा बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। दीज आर द बॉइलिंग पॉइंट्स। नाउ अब जरा देखिए, मुझे 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, अनपेयर्ड चाहिए। जो पेयर होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। यू ऑलरेडी हैव स्टडीड दिस थिंग।
अगर मुझे इसके 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मुझे इसको हीट करना पड़ेगा। हीट करने से एक ये पेयर टूट गया, एक ये पेयर। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने ये क्यों तोड़ा? अरे भाई मेरी मर्जी है यार, तुम क्या कर लो। ओके, अच्छा तुम्हारा दिल चाह रहा है तुम इन दोनों को तोड़ लो, ठीक है। तुम्हारा दिल चाह रहा है तुम इन दोनों को तोड़ लो, तुम्हारा दिल चाह, मतलब ये सवाल जो है लाइक नॉन प्रोडक्टिव क्वेश्चन। आई कैन स्प्लिट अप एनी ऑफ द पेयर, राइट। दो पेयर टूट गए तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कैसी नजर आ रही है? ऐसी नजर आ रही है। अब फ्लोरीन के साथ इसको बॉन्ड करते जाइए। फ्लोरीन के अपने वैलेंस शेल में कितने 7 होते हैं? 6 तो ये रहे और एक ये रहा साथ में। फ्लोरीन, फ्लोरीन, एफ। तो एग्जामिनर ने ये 3 दफा एग्जाम में पूछा है XeCl4 का स्ट्रक्चर। नाउ आई वांट यू टू ड्रॉ सेम स्ट्रक्चर XeCl4, right, and send it to me on WhatsApp. You have 4 minutes time. Draw this dot and cross line, which is more likely to be this, but I'll tell you how you will have to differentiate. Take it, beta. You have 3 to 4 minutes and send it on your class groups or directly to my number on WhatsApp. Your time starts now. Fucker, just try it out anyways. Take someone else's phone at your home and send it to me. Quickly. I'll talk to you after 1.5 minutes.
All right, students, are you done? अस्सलाम वालेकुम मैम. जी मैम, अस्सलाम वालेकुम. अच्छा 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 अच्छा. मैं लेट आने वाला कुछ. ठीक है मैम, ठीक है. ओके. ओके, तो हमने अब कंपैरिजन करवाना है, तो वो कौन सा बेसिस ऑफ कंपैरिजन होगा जिस पे एग्जामिनर दोनों को डिफरेंशिएट करेगा? सर बिल्कुल एक जैसा ही बनना चाहिए. नहीं, बिल्कुल एक जैसा नहीं. जेनन तो उसी साइज का बना है कंपैरेटिव, लेकिन फ्लोरीन के बाद जो क्लोरीन बनाना है उसका साइज बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर को डिफरेंशिएशन और कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल सके. You already know that chlorine is slightly bigger in size than that of fluorine. ये चीज़ें एग्जामिनर नोटिस करता है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ. इसको अपने साथ रखिएगा, भूलिएगा नहीं तमाम छोटी छोटी चीज़ें. ऑलराइट जी, चलिए अब हमारे पास हैं यूजेस ऑफ नोबल गैसेस. बस क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते तो इसलिए हमारे लिए बात बहुत आसान है कि इस ग्रुप को फौरी तौर पे याद कर लें. पहला यूज इसका या इंडिविजुअल यूज देखते हैं. हीलियम इज यूज्ड इन एटमॉस्फेयर बलून. Neon is used as, or used in rather, advertising light. अब एडवर्टाइजिंग लाइट तुम देखते हो कि कलर्ड लाइट में कुछ लिखा हुआ होता है, इनको नियॉन लाइट्स भी कहते हैं. आर्गॉन लाइट बल्ब्स में इस्तेमाल होता है. यूज्ड इन लाइट बल्ब्स. क्रिप्टन ये एयरपोर्ट्स लाइट्स में इस्तेमाल होता है, या रनवे लाइट कहते हैं इसे. एक मिनट. यस एग्जैक्टली. जीनॉन. अच्छा, जीनॉन का यूज मुझे कौन बताएगा? मुझे पता है मेरी क्लास के स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट हैं. जीनॉन कौन सी लाइट में भाई? कार हेडलाइट्स में तो मॉडिफाइड जो अब वर्जन आ रहे हैं, लेकिन जनरली इट इज यूज इन कैमरा फ्लैशेस. तुमने सही बोला है, लेकिन कैमरा फ्लैशेस इज दैट स्टैंडर्ड आंसर विच इज एक्सेप्टेड बाय योर एग्जामिनर. ठीक है. रेडॉन एक रेडियो एक्टिव गैस है. रेडियो एक्टिव गैस. ठीक है. तो ये मेरे पास यूजेस ऑफ नोबल गैसेस थे जिनकी बेसिस के ऊपर हाँ, रेडॉन रेडियोथेरेपीज के लिए इस्तेमाल होता है. ये इसका मेडिसिनल या मेडिकल यूज है. मेडिकल यूज. राइट. ओके,
सो पहले सेशन का टाइम यहाँ ख़त्म होता है. आई एम सेंडिंग यू अनदर लिंक, क्विकली ज्वाइन इट, ताकि फौरी तौर पे बात को आगे बढ़ाया जा सके. रेडॉन रेडियो एक्टिव गैस है. रेडियो एक्टिव गैस जिसमें रेडियो एक्टिविटी होती है. रेडियो एक्टिविटी मतलब इनमें से रेडिएशंस निकल रही होती हैं. उन रेडिएशंस को मेडिकली यूज़ किया जाता है रेडियोथेरेपी के अंदर. रेडियोथेरेपी कैंसर सेल्स को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. ये इसका मेडिकल यूज़ है. ठीक है जी. सो आई एम सेंडिंग यू अनदर मीटिंग लिंक, क्विकली ज्वाइन दैट so that we can continue with transition metal right after this. Thank you very much.